उसका बात टेक्निकल ये ना मैसेज चल रहे না এবার ভাবে এবার মানে আৰু অলপ কালিও দেখিছে নিউয়ৰ্ক টাইমছত সময় सर्वप्रथम वंदना है भगवान श्री गणेश की, क्योंकि उन्हीं से है कृपा बरसती ब्रह्मा विष्णु महेश की। Thank you so much. All right, a very good morning, ladies and gentlemen. I'm your host for the event, Jimoni Gorman. A very shown in this video is an actual site in the state of Uttar Pradesh. I now request Honorable Chief Minister of Assam and Honorable Union Minister of Ports, Shipping and Waterways to please inaugurate Navdarshika, the National River Traffic and Navigational System Guidelines, and also request the dignitaries to kindly unveil the guidelines with a big round of applause. Thank you. I now request the Honorable states and union territories include construction of jetties, construction of dedicated tourist terminals, regional centers of excellence, ship repair facilities, peak pontoon opening systems, inland vessels, including electric management system, feasibility studies and preparation of detailed project reports, etc. Once again, a big round of applause, ladies and gentlemen. How are you? All fine? Sir. Thank you. Minerals and Metals Limited. From the East Zone, Mr. B.K. Mishra of Messrs. IFCO Paradeep. From the North East Zone, Shri Bhaskar Jyoti.
हैरेसमेंट की तरह लोगों को चढ़ाया जाता था, कई बार कपड़े गीले हो जाते थे, किसी के जूते गीले हो जाते थे, तो वो सारी काफी असुविधा होती थी। अब ये एक प्रॉपर वे लगता है कि हाँ एक तरीका है जिससे आप बोर्ड कर सकते हैं, आराम से अनबोर्डिंग हो सकती है आपकी, तो आपको मतलब वो जूते हाथ में लेकर चढ़ने का और पैंट ऊपर करके चढ़ने की जरूरत नहीं होता। गंगा नदी पर बने पॉन्टून पुल लोगों के आवागमन का मुख्य साधन है, लेकिन ये जहाजों की आवाजाही में बाधा बनते हैं। पारंपरिक पॉन्टून पुलों को काटने और जोड़ने की प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लगता है, जिससे पुल पर यातायात और जलपोत दोनों की गति बाधित होती है और जिसका सीधा प्रभाव व्यापार व सामाजिक आर्थिक गतिविधियों पर पड़ता है। इस समस्या Two steel pontoons and 12 vessels are being procured for Assam under CSS scheme. We have initiated DPRs for River Talwang and Chimkipu in Mizoram, Doyang and Jogikopa is nearing completion. Extension of terminal to Bogibeel is underway along with other works. Ship repair facility at Pandu with elevated road is under construction. Dredging contracts have been awarded for Dubri Pandu stretch of Brahmaputra. Welcome, sir. At Jogikopa is nearing completion. Extension of terminal to Bogibeel is underway along with other works. Ship repair facility at Pandu with elevated road is under construction. Dredging contracts have been awarded for Dubri Pandu stretch of Brahmaputra. Ports, shipping and waterways for holistic development of national waterways across the country to enhance cargo, passenger movement and river cruise tourism with active participation of states in the country. The first meeting of the Council हमारा जो विकसित भारत का संकल्प है, इसमें हमारा इनलैंड वाटर सेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। और इस देखा है हमारे नुमोलीगढ़ रिफाइनरी का एमडी ने सर्टिफिकेट लिया था यहाँ से। हमारा नुमोलीगढ़ रिफाइनरी 3 मिलियन मेट्रिक टन से वी आर एक्सपांडिंग इट टू 9 मिलियन मेट्रिक टन। और सारे जो बड़े मशीनरी आए, हमने ये रिवर रोड को इस्तेमाल किया, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रोड को इस्तेमाल किया और वही से ही हमने हेवी मशीनरी लाने का काम किया। हमने रोड को टू दैट एक्सटेंट वी हैव कंटेन्ड द डैमेज टू द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। और पूरा मिनिस्ट्री ने सोनोवाल जी का नेतृत्व में इस दिशा में बहुत बड़ा काम कर रहा है। और इनलैंड वाटर छोड़ के भी विश्वर जिबिलाक डेस्टिनेशनत যাবৰ বাবে পৰ্যটকসকল আগ্ৰহী বা পৰ্যটকসকল যাব পাৰে, তাৰ ভিতৰত অসম এটা আকৰ্ষণীয় ডেষ্টিনেশ্যন আৰু ইয়াক তেওঁলোকে বিশ্বৰ ৪ৰ্থ স্থানত স্থান দিছে। যোৱা ৩ বছৰত এক আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশ, যোৱা ৩ বছৰত আমি যি ধৰণে অসমৰ পৰা হত্যা হিংসা আমি নোহোৱা কৰিবলৈ অসমবাসী সক্ষম হলো। আৰু চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ, তাৰ লগে লগে মাজুলী, কাজিৰঙা, মানস, কামাখ্যা মন্দিৰ, বৰদোৱা, এই সকলোকে আমি বিশ্ব মানচিত্ৰত লৈ যাবৰ বাবে যি আমাৰ প্ৰয়াস আছিল, বিহুক এক সুন্দৰভাৱে বিশ্ব মানচিত্ৰত লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস চলিছিল, সেই সকলোবোৰে আজি অকল অসম আৰু ভাৰত নহয়, বিশ্বৰো দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই অসমবাসী ৰাইজক অভিনন্দন জনাইছোঁ। এতিয়া আমাৰ দায়িত্ব হ'ব পৰ্যটন খণ্ডটোক আৰু অধিক আকৰ্ষণীয়কৈ সজাই পৰাই তোলা। আমি তাৰ বাবে প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা কৰিম। এটা আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশ, হত্যা হিংসাৰ পৰা এখন সমাজ আঁতৰি আহিলে সেই সমাজখনে যে আকাশ চুব পাৰে, সি আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ হ'ল।
মই অসমবাসীক নতুন বছৰত লাভ কৰা এই কৃতিত্বৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছো। एडवांटेज टू अपना कितना आसाम पुलिस को जो हमला हुआ था नागालैंड में सर एडवांटेज सर एडवांटेज कोई इश्यू नहीं है। हम लोग सब कुछ संभालते हुए हैं और আমি সকলো ঠিক কৰি থাকিম। এইবিলাকক বহুত বেছি হেৰি सर एडवांटेज टू अपने किमान आशाबादी विनियोगर क्षेत्र किमान आशाबादी एडवांटेज टू अपने अपने जेहेतु मुंबईत लग কৰিছে আশাবাদী বা মোৰ আশাৰ ওপৰত নহব। অসমৰ মানুহে বিনিয়োগকাৰীক কিমান আশ্বস্ত কৰিব পাৰিব তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব। মোৰ ওপৰত কি হ'ব? অসমৰ মানুহে যিমানেই আশ্বস্ত কৰিব যে অসম শান্তিত থাকিব, অসম সকলো ফালৰ পৰা এখন বিনিয়োগ ফ্ৰেণ্ডলি ষ্টেট হ'ব, তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব। গতিকে তেওঁলোকৰ অসমৰ ওপৰত এছেছমেণ্ট কি সেই কথা আমি এডভান্টেজ অসমৰ সময়ত গম পাম। আজি ভাৰত চৰকাৰৰ জল পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে তেওঁলোকৰ যিখন এপেক্স কাউন্সিল মিটিং হয় তাক কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত কৰিছে। ভাৰতৰ কেইবাজনো মন্ত্ৰী আহিছে, 200তকৈ ওপৰত বিশেষজ্ঞ আহিছে। সকলোকে মই আদৰণি জনাইছোঁ আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে ইয়াৰ যিটো ভেনু এই মিটিঙৰ স্থান কাজিৰঙাত নিৰ্ধাৰণ কৰা। सर पंचायत developing in here and what was this also like connecting in Kaziranga so that we can see the Majbi also. So what do you say on this, sir? What you are asking, I could not Sir, got it. I'm talking about this particular event. Many projects. I think event like this and many more will draw the attraction towards Kaziranga, because if 200 people are coming today, they will go, they will see the Kaziranga, they will make more publicity. The next time 2000 will come. So this will have a replication. This will have a effect. So আমি কিয় আজি এই বেয়া কথাবোৰ আলোচনা কৰিম? বেয়া কথা এইবিলাকতো মই জানোৱেই, কিন্তু এইবিলাক কথা মাইকত ক'লে দুটা মানুহ অহাটো ইয়াত কমিহে যাব। মই আপোনালোকক এটাই কথা কৈছো যে মই নিগেটিভ কথাৰ উত্তৰ দিয়াটো এক প্ৰকাৰ বন্ধ কৰি দিছো। एलिवेटेड कॉरिडोर नंबर 6 को काजिरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर সোনকালে ঘোষণা होले नो सर Sir, talking about in terms of that, sir, you are working on that, sir. हमने निर्णय लिया, इसीलिए तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने वर्ल्ड का सबसे 4th डेस्टिनेशन बोला काजीरंगा। तो हमारे काम के लिए तो ये दिख रहा है ना। तो आज असम में जो वायलेंस खत्म हो गया, एजिटेशन खत्म हो गया, उससे बड़ा कदम कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सर आपको क्या लगता है कि सर जो इतने चलिए हो गया। हाँ सर नतुन बखत काजिरंगा अस्थायी वन कर्मचारी ভাল খবৰ আহিব। আহিব सर চবৰে पंचायत निर्वाचन केनेदरे আগবাঢ়িব पंचायत निर्वाचन হাইকোৰ্টৰ পৰা জাজমেণ্ট আহিব, তাৰপিছত দেখা যাব। So one last question, sir. ধৰি ল'ব লাগিব কোনটো ধৰিব লাগিব এনেকৈ ধৰি বুজাব লাগিব ভাঙিলে দেখি যায় এইটোতো মিলেটত বনোৱা তলৰ এইটোতো নৰ্মেল বনোৱা। যোৱা তুমি যোৱা नेपाली पिठा है सबसे धुनीয়া এইবিলাক ফুল এইটো কোনে বনোৱা? গোলাঘাট মধু আমাৰ মাতৰ কাৰণে ভাল। এইটো লৈ লওক হাতত। निवेदन होगा हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी यहाँ में है कि हमें भी वॉकआउट करना है कि कैसे सेंट्रल स्कीम का कॉम्प्लीमेंट
हम स्टेट का भी स्कीम बना सकता हूं एंड वी कैन डाइवर्ट मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक फ्रॉम रोड टू द इनलैंड वाटर। और मेरा लगता है कि ये हमें प्रायोरिटी से सोचना चाहिए। एक निवेदन करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। ड्रेजिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो नेविगेशन रोड है, हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करना है, और साथ साथ में असम में फ्लड क्वेश्चनिंग के लिए जो हमारे एनुअल फ्लड्स आते हैं, इसको भी हमें कंटेन करने के लिए हमारे लिए ड्रेजिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सोनोवाल जी को निवेदन करूंगा कि स्टेट ड्रेजर प्रोक्योर कर सके, इसलिए एक कोई सेंट्रल सेक्टर स्कीम आए जिसमें स्टेट एंड सेंट्रल इन पार्टनरशिप वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ ड्रेजर्स इन द रिवर। अभी जो पॉपुलेशन है, जैसे पूरा सदिया से हम धुबरी तक देखता हूं, वी हैव 3 ड्रेजर्स बट वी नीड 30 ड्रेजर्स। सो इसमें अगर भारत सरकार हमें कोई मदद कर सकता है, 50-50, 90-10, 70-30 जो भी है, अगर कोई ड्रेजर स्टेट भी खरीदे, बिकॉज सारे मेजर ट्रांसपोर्टेशन रोड भारत सरकार देखे, साथ में हम लोग भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर ड्रेजर खरीदने के लिए कुछ अच्छा सेंट्रल सेक्टर स्कीम निकाले और ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया थोड़ा एक्टिव हो जाए, हमको भी दिखाए कि कैसे वी कैन मेंटेन, वी कैन डू मोर एंड मोर ड्रेजिंग, उससे हमारा सबको लाभ मिलेगा। जो मिनिस्ट्री का एफोर्ट है, उस एफोर्ट में हम सप्लीमेंट कर सकते हैं। वी कैन प्ले ए बिग कॉम्प्लीमेंट्री रोल। तो मेरा ये निवेदन होगा, लेकिन कुल मिला के मैं ही बताना चाहूंगा कि मैरीटाइम म्यूजियम से डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटर, बहुत बड़ा काम हुआ है। और मैं खास करके गर्व भी महसूस करता हूं कि हमारे असम का सोनोवाल जी जब कैबिनेट मंत्री बने, उसी समय भारत को एक मैरीटाइम सेक्टर में बहुत बड़ा बल मिले। तो इसीलिए मैं एक असमिया होने का नाते गौरव भी महसूस करता हूं और सोनोवाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि काजीरंगा हैज द हाईएस्ट डेंसिटीज ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन अमॉन्ग ऑल इंडियन नेशनल पार्क्स। साइटिंग थोड़ा सा इश्यू है, पता नहीं किसी को देखा नहीं देखा, बट वी हैव द highest densities of tiger in among all Indian national park. Kaziranga is also a very successful conservation story. हमारा काजीरंगा में 2014 के पहले प्रति साल 50 राइनो का पोसिंग होते थे, बिकॉज इसका जो हॉर्न है, इसको एक देयर इज ए इम्प्रेशन अराउंड इन सम कंट्रीज कि इसका बहुत बड़ा मेडिसिनल वैल्यूज है। आपको मैं ये भी बात बताना चाहूंगा, जब सोनोवाल जी हमारे असम के मुख्यमंत्री बने, पहला राइनोकोर पोसिंग का ऊपर बड़ी कार्रवाई शुरू हुआ, एंटी पोसिंग। उनका ही टेन्यूर में फ्रॉम 60 to 50 इट हैज कम डाउन टू 4 and 5। इतना बड़ा प्रभावी काम हुआ सोनोवाल जी का नेतृत्व में, और आज कभी 1 और कभी 0 का बराबर है। और हमने काजीरंगा को पूरा पोसिंग से फ्री करवा लिया। नाउ इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट कंजर्वेशन स्टोरी इन वर्ल्ड लैंडस्केप। उससे भी एक बड़ा बात है कि काजीरंगा में जैसे बाकी नेशनल पार्क का एरिया सिंक हुआ है, बट ओवर द लास्ट डिकेड काजीरंगा का एरिया बढ़ा है। एंड विदाउट हमें किसी का साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्लैश नहीं है। असम का लोगों ने समझा कि ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट, हमारी ये गौरव है। और लोगों का कोऑपरेशन से हमें काजीरंगा का लैंडस्केप को बढ़ाया। एंड दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शनल स्टोरी जहां लैंडस्केप सिंक नहीं हुआ है, लैंडस्केप बराबर बढ़ा है। 3 साल पहले हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जैसे नेचुरली भी बहुत सारे राइनो का डेड होते हैं, पोसिंग के लिए भी डेड होते थे, ये सारा हॉर्न हम लोग प्रिजर्व करके रखे थे। इन 2022
हमने ये सारा हॉर्न इकट्ठा करके हमने इसको जला दिया एक साथ, टू शो द वर्ल्ड कि इसमें कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं है, इसका आप जो सोचता है वो नहीं है। दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द एनिमल, हमारा राइनो का है, और उसको हमको डिसेंट बैरियल भी करना है। सो वी डिड दैट, एंड उनका बाद जो मीट था राइनो हॉर्न का, सराउंडिंग राइनो हॉर्न, ये काफी डिमोलिश हुआ। और बाद में लास्ट ईयर प्रधानमंत्री जी काजीरंगा में आए और एक दिन रात यहाँ उन्होंने खुद बिताया, एंड ही ट्रेवल अक्रॉस द नेशनल पार्क्स ऑलमोस्ट फॉर 5 hours. ही टूक ब्यूटीफुल फोटोग्राफी बाय हिमसेल्फ। और लास्ट ईयर जो सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा वायरल फोटोज था, उसमें मोदी जी का काजीरंगा घूमना भी और काजीरंगा को देखना भी वन ऑफ द मोस्ट वायरल फोटोग्राफी थे और वायरल पोस्ट था इन सोशल मीडिया लास्ट ईयर। हमारे राष्ट्रपति महोदया भी यहाँ आए, भूटान के राष्ट्रप्रधान भी राजा भी यहाँ आए, और अभी हमारे जो नेक्स्ट लग्स है बड़ा, कि जब फ्लड होते हैं, यही एनिमल जो आज आप नॉर्थ साइड देखा है, दे एक्चुअली गोज टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स द हिल्स ऑफ अ नियर बाय डिस्ट्रिक्ट कॉल कार्बी आंगलोंग। जैसे हमारा मासाई मारा में एक ट्रांसफर होता है एनिमल का बिकॉज ऑफ द नेचुरल रीजन, यहां में भी हमारा एनिमल खुद ब खुद दे मूव टुवर्ड्स द हिल जब फ्लड होते हैं। उसी समय नेशनल हाईवे का कारण ट्रक्स ऑल्सो एक्सीडेंट होते हैं। हर साल हमारे 80-100 का एक बड़ा वाइल्ड लाइफ वो एक्सीडेंट में मरते थे। अभी प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति दिया है, ऑलमोस्ट दिस इज इन द लास्ट स्टेज, यहां में 32 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा just to save the wildlife. So this is the kind of, you can think that this is the kind of the dedication towards the wildlife of our Prime Minister Modi ji. तो मैं सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे ट्रांसपोर्ट का कितना % we can transfer from road and rail to inland water. I think that should be our yardstick. और उसी से we can take out that how much we are committed, और ये कमिटमेंट को हम माप सकता हूं कि हमने कितना कार्गो और कितना हमारे जो लोड है ऑन रोड एंड रेलवे वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द इनलैंड वाटर। और हमारे जो सिविलाइजेशन है, ये नहीं है कि ये हमारे लिए कोई नया मार्ग है। सिविलाइजेशन का शुरुआत ही नदी से हुए है, और दिस इज आवर नेचुरल रोड। लोगों ने रास्ता बनाया, लोगों ने रेल बनाया, लोगों ने एविएशन क्रिएट किया, लेकिन जो ये जलवायु का जो ये हमारा जल का जो रोड है या इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है, ये 5000-4000 सालों से चलते हुए, दिस इज पार्ट ऑफ द होल सिविलाइजेशन स्टोरी। सो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इज वेरी वेरी, हमारे जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, उनका साथ जुड़े हुए हैं, और इसीलिए मानव के लिए ये कोई नया डिस्कवरी नहीं है। हमें इसको खाली वर्तमान समय का अनुसार हमें इसको ठीक ठाक करना है और इसको हमें बल देना है। मैं माननीय मंत्री सोनोवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में बहुत सालों का बाद यह सेक्टर का ऊपर फोकस दिया जा रहा है, और मैं बराबर उनसे बात भी करते रहता हूं कि कैसे पूरा मैरीटाइम सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए एक बहुत बड़ा काम मोदी जी ने शुरू किया है। और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे जो 2047 हमारा जो विकसित भारत का संकल्प है, इसमें हमारा इनलैंड वाटर सेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा, और इस दिशा में हम लोग आगे भी बढ़ रहा हूं। मैं पूरा प्रदेश को यही बताना चाहूंगा कि हमें ये सेक्टर को सीरियसली लेने हैं। जैसे हमें रोड्स को सीरियसली लेता हूं, रेल को सीरियसली लेता हूं, एविएशन को सीरियसली लेता हूं, हमें ये सेक्टर को सीरियसली लेना है। हमारे पोल्यूशन कम करेगा, जलवायु में हमारा नियंत्रण आएगा, और ये बहुत शिप
ट्रांसपोर्ट भी है, बहुत कम पैसा में हम इसको हम गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर सकता हूं। लग्जरी में भी इसमें कोई कमी नहीं है कि इसमें ग्लैमर नहीं है। अभी जैसे गंगा विलास हुए, प्रधानमंत्री जी ने जैसे हर बिंदु का उसमें निरीक्षण किया और जो लोग आए असम में हम सबको मिलने का मौका मिला, ये लोग इतना खुशी थे कि इसलिए आप जब भी रास्ता से जाते हो आप कुछ नहीं देखते हो, लेकिन जब नदी से आप जाते हो पूरा भारत को आप देखते हो, इसका नेचुरल ब्यूटी। जैसे अगर हम गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ जाता हूं, उस समय काजीरंगा को नदी से इतना बढ़िया हम देखता हूं। हम आज जो भी हमने देखा वो कम है, लेकिन अगर ब्रह्मपुत्र से होते हुए हम जाते थे तो काजीरंगा का एक्चुअल खूबसूरती हमें देखने के लिए मिलते थे। और आगे जाके अगर हम गुवाहाटी से जहाज से डिब्रूगढ़ जाता हूं, काजीरंगा का बाद वर्ल्ड का सबसे जो बड़ा रिवर आइलैंड है माजुली, हम माजुली भी देख सकते थे और जीवन शैली भी हम देख सकते थे। लेकिन इसीलिए मेरा मानना है कि रिवर क्रूज इज वन ऑफ द इमर्जिंग सेक्टर, बोथ लग्जरी एंड बोथ फॉर द कॉमन पीपल। मेरा लगता है कि मिनिस्ट्री को इसमें भी ध्यान देना है कि जितना हम क्रूज बढ़ाए, जितना हम इसके लिए काम करें, हमारा टूरिज्म सेक्टर को भी बहुत बड़ा बल मिलेगा। ये भी मेरा एक निवेदन होगा। असम में हम बहुत काम कर रहा हूं, हम बहुत प्रतिबद्ध हूं। हमारे वर्ल्ड बैंक का साथ जब सोनोवाल जी मुख्यमंत्री रहे तब उन्होंने ही स्टार्ट किए थे असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। वर्ल्ड बैंक का साथ 1000 करोड़ रुपया का लागत से हम लोग काम कर रहा हूं, हम लोग बढ़िया जेटी बना रहा हूं और हमने एक प्रकार से इनलैंड वाटर को हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसमें हम अहम एक रोल देने का हम काम कर रहा हूं। हमारे असम इनलैंड वाटर अथॉरिटी भी बन चुका है और हम डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को भी हम इंप्रूव कर रहा हूं। पांडु पोर्ट को, डिब्रूगढ़ पोर्ट को सोनोवाल जी ने काफी मदद भी किया है। और सबसे जो बड़ा काम हमारे लिए हुआ है द डेवलपमेंट ऑफ इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रोड। अभी हम कलकत्ता तक आ सकता हूं, लेकिन कलकत्ता से गुवाहाटी आने के लिए वी हैव टू कम थ्रू बांग्लादेश। और हमारे लिए जो इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रोड बना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन रहा। अभी आपने देखा है हमारे नुमलीगढ़ रिफाइनरी का एमडी ने सर्टिफिकेट लिया था यहां से। हमारा नुमलीगढ़ रिफाइनरी 3 मिलियन मेट्रिक टन से वी आर एक्सपांडिंग इट टू 9 मिलियन मेट्रिक टन। और सारे जो बड़े मशीनरी आए, हमने ये रिवर रोड को इस्तेमाल किया, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रोड को इस्तेमाल किया और वही से ही हमने हेवी मशीनरी लाने का काम किया। हमने रोड को टू दैट एक्सटेंट वी हैव कंटेन द डैमेज टू द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये इसके लिए बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात है ड्रेजिंग। अभी मिनिस्ट्री ने ड्रेजिंग में काफी काम किया है। जैसे मेरा निवेदन होगा, जैसे बांग्लादेश से बाराउनी तक, हमारे बंगाल से बाराउनी तक डेडिकेटेड ड्रेजिंग हो रहा है। इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रोड और एंड डियर आफ्टर अप टू सदिया, इसमें थोड़ा और अच्छा से ड्रेजिंग अच्छा से थ्रू आउट द ईयर ड्रेजिंग होने से हम लोग ये सेक्टर को बढ़ावा दे वी कैन एनकरेज दिस सेक्टर। अभी मिनिस्ट्री ने कुछ इंसेंटिव डिक्लेयर किया है, वी कैन ऐड स्टेट इंसेंटिव टू दैट ऑल्सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज ट्रैफिक ऑन द inland water.